ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਹੇਅਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨ ਦੀ ਆਲ SSC ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ SSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। So without wasting of time, let's start. ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ SSC ਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ A can do a job in 15 days, B can do the same job in 20 days. In how many days working together they can complete the job? ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ A ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਨੂੰ 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲਸੋ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਮ ਜੋਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਫਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ A 15 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, B ਜਿਹੜਾ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਮਨ ਐਲਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਣ, ਡੈਟ ਇਜ਼ 60। ਇਹ ਜੋ 60 ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 60। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। 60 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 4 ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ A ਦੀ, ਐਂਡ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਕ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ 4 ਐਂਡ B ਦਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 3। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਆ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਜ਼ 4 + 3 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7। ਸੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕ, ਜੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਸੀਗਾ 60, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ 7 ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ 60 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 8 4/7 days। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਟਾਈਪ ਫਸਟ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਟਾਈਪ ਫਸਟ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ A ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, B ਐਂਡ C ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਉਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਓ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ A and B can do a piece of work in 8 days, B and C can do the same work in 12 days and A and C complete in 8 days. In how many days A, B and C complete the work together? So same ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ A and B ਹੈ ਉਹ 8 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, B ਐਂਡ C ਜੋ ਹੈ 12 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ C + A ਜਿਹੜੇ ਆ 8 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੁਗੈਦਰ A + B + C ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਡੈਟ ਇਜ਼ 24। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 2 ਐਂਡ 3। ਸਿੰਪਲੀ 24 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, 12 ਨਾਲ ਐਂਡ 8 ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ A + B ਦਾ, A + B ਦਾ, B + C ਦਾ ਐਂਡ C + A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਹੈ ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 2 + 3 2 + 3 + 3 ਵਿਚ ਇਜ਼ 8। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ A ਵੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੈ, B ਵੀ ਅਤੇ C ਵੀ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ A + B + C ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8। ਸੋ A + B + C ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ 4। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ 4 ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ 24 ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ।
सो आंसर आ जाएगा इन्हां दा 24 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 6 डेज। सो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के उस काम नूं 6 डेज दे विच खत्म कर देंगे। अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा आ कि ए किसी काम नूं जो है 12 डेज दे विच करदा है एंड सिमिलरली बी किसी काम नूं जो है 15 डेज दे विच काम करदा है। हुण क्वेश्चन जो ये है कि ए जिहड़ा वा 3 डेज तक काम करदा है एंड फिर बी जिहड़ा उहनूं जॉइन कर लैंदा है उस वर्क नूं ही। तो कहंदे आ भी हुण जो ए प्लस बी जो टोटल जो टुगैदर है ये किन्ने डेज दे विच अपना जिहड़ा काम है खत्म करनगे। ए 12 डेज विच काम करदा है, बी 15 विच, ए ने 3 दिन काम कर लिता है, हुण बी ने भी उन्होंने नाल जॉइन कर लिता है तो आपां टोटल डेज पता करने हैं किन्ने दिन डेज दे विच काम खत्म करना। इट इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो सिंपली आपां सेम उसी मैथड दे नाल ही पहला दोनों का जो है एलसीएम निकालांगे डैट इज़ 60 हुंदा टोटल वर्क। उन्हें टोटल वर्क करना आ 60। एफिशिएंसी इन्हां दी आ जाएगी 5 एंड 4 ये मतलब ए दा एक दिन का वर्क 5 है, बी का 4 है। सो ठीक है, ए एंड बी का जो टोटल वर्क है 1 डे वर्क दैट इज़ 9, 5 + 4 9। सो ये सीगा। सो देखो ए प्लस बी टोटल डेज आप पता करने हैं, पर ए ने कल्ले ने 3 दिन काम कर लिया है, हुण बाकी दिन किन्ने लगदे आपां वो पता करना है। देखो जिहड़े ए ने 3 दिन काम किया है, कितना काम किया, ए दी एफिशिएंसी है 5, ए दी एफिशिएंसी है 5 तो काम उन्हें किया है 3 दिन, तो कितना काम हो जाएगा 5 × 3 = 15 वर्क जिहड़ा ए ने ही कर लिया 3 दिन दे विच। सो 15 वर्क कर लिया, बाकी कितना बचा 60 विचों आप 50 माइनस कर देंगे डैट इज़ 45 वर्क जो है वो बचिया है जो कि ए प्लस बी ने करना सी। सो हुण आपां नूं पता आ कि रिमेनिंग जो वर्क है वो ए प्लस बी द्वारा किया जाएगा। टोटल वर्क है 45 तो ए प्लस बी की जो 1 डे की एफिशिएंसी है 9 नाल डिवाइड कर देंगे। सो 5 डेज साडे कोल आंसर आ जाएगा। सो दोबारा क्लीयर कर देना है, ए ने 3 डेज तक काम किया है तो उन्हें मतलब 15 काम जो उन्हें कर लिया है, बाकी 45 बच गए सी। 45 जो ए प्लस बी द्वारा काम किया जाना से। आपां नूं पता है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, एक दिन का काम 9 है तो 45 कितने डेज में करेगा 5 डेज विच। टू सिंपल, तुसी आप करोगे तो ये ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। हुण करते हैं आप टाइप 4 का क्वेश्चन। टाइप 4 दे विच साडे कोल क्वेश्चन है कि अगर 8 मैन जो है कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, 8 मैन किसी काम नूं 5 डेज दे विच कर देंदे ने। सो किन्ने मैन चाहिए ने, किन्ने व्यक्ति जो रिक्वायर्ड ने कि काम जो है 10 डेज दे विच कंप्लीट हो जाए। सो ये वैसे तो क्वेश्चन वेख के ही आंसर जो पता लग ही जाता है, इत्थे हाफ होंदा है, इत्थे भी हाफ का आंसर 4 आ जाएगा। बट कई बार स्टेटमेंट बहुत औखी आ जाती है जिन्हों आप सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते वेख के। इसके लिए मैथड की है प्रॉपर। हुण कोई भी सवाल आ जाए इस टाइप का किवें सॉल्व करना है। सानूं 8 मैनस का वर्क दिता है 5 डेज के विच, आपां मैन पता करने हैं 10 डेज के विच। इहदे लई एक फार्मूला हुंदा आ M1D1 = M2D2। M1 मतलब आ वाली स्टेटमेंट दे जो मैंने उन्होंने M1 लिखांगे एंड D1 डेज, दिस इज़ M2 एंड दिस इज़ D2। M1 साडे कोल है 8, डेज साडे कोल है 5 एंड सिमिलरली M2 मैन इत्थे आपां नूं नहीं पता, सो M2 आपां इवें रहन दांगे, डेज साडे कोल है 10। सो जदों हुण इनूं आपां सोल्व करांगे, सो 8 5 are 40 तो M2 × 10। सो इतों साडे कोल M2 जिहड़ा है वो निकल आएगा 40/10 डैट इज़ 4। मतलब 4 मैन जो रिक्वायर्ड सीगे भी काम नूं 10 डेज दे विच कीता जा सके। इवें ही साडे कोल हो सकता है कि 8 मैन की जगह पुछ लैन इत्थे 10 मैनस दस देन तो डेज पता कर ले कह देन, उत्थे आपां M2 की वैल्यू फिल कर देंगे तो डेज नूं आपां D2 ही लिखिया रहन देवांगे। नैक्सट है टाइप 5 दे विच क्वेश्चन।
टाइप 5 का क्वेश्चन ये हैगा आ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ अगर 20 मैन जो है 40 टॉयस प्रिपेयर करते हैं इन 24 डेज़। 20 मैनस है जो 40 टॉयस बनाते पे ने वो भी 24 डेज़ दे विच ते वो भी 18 हाउस पर डे काम करते। तो क्वेश्चन सीगा 20 मैन जो 40 टॉयस बनाते हैं 24 डेज़ तक वो काम करते हैं तो रोज़ दे 18 हाउस तक वो काम करते हैं। सो नैक्सट स्टेटमेंट विच पूछा आ कि दैन हाउ मैनी डेज़ साडे कोल पुछ लए ने। हुण आपां लाइन सिर लिखदे पहलां 20 मैन 40 टॉयस बनाते हैं 24 डेज़ दे विच ते 18 हाउस का वो काम करते हैं। हाउ मैनी डेज़ साडे कोल पूछे गए ने 36 मैन 36 मैन 48 टॉयस इन वर्किंग 16 हाउस पर डे। सिमिलरली सेम स्टेटमेंट दी है पर उत्थे इन्होंने डे पूछ लिया। इहदे लई भी साडे कोल एक फार्मूला है, वो सेम पिछले वाले टाइप 4 के नाल दा एक फार्मूला आ, वो है M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन W2। सो 1 जो फस्ट स्टेटमेंट दे विच दिता गया आ मैनस डेज़ हाउस एंड वर्क एंड सिमिलरली जो सैकेंड स्टेटमेंट दे विच दिता उहदियां वैल्यूज़ इहदे विच रख देनियां। हुण M1 मतलब 20 मैनस तो लिखांगे 20 इंटू D1 डेज़ है 24 तो इत्थे लिखांगे 24 हाउस है 18 लिखांगे वर्क किन्ना करते पे ने 40 टॉयस बनाते पे ने तो 40 लिखांगे। सिमिलरली M2 मैनस है 36 इंटू डेज़ असी पता करने सो इत्थे D2 लिखे रहन देंगे हाउस साडे कोल 16 एंड वर्क 48 टॉयस बनाने है ना। हुण इनू रीअरेंज करांगे मतलब आप D2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहुंदे आ तो बाकी सब इक्वल टू दे साइन तो दूजी साइड चल जाएगी। ये लिए 20 इंटू 24 इंटू 18 ओवर 40 सो 14 इतने डिवाइड होंदा पाया तो उधर जाके क्या होएगा मल्टीप्लाई एंड 36 इंटू 16 जो इधर आ जाएगा D2। सो इनू कैंसलेशन करन तो बाद जो साडे कोल आंसर आएगा दैट विल बी D2 इज इक्वल्स टू 18 डेज़। इन्हें तुसी कैंसलेशनस जो है करके देख सकते जो जिमें 21 आ 20 22 आ 40 इदा ही सिमिलरली बाकी भी कैंसल आउट हो जाएंगे। सिंपली बहुत ही सिंपल इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं करना है कैंसल हो जाने हैं। सो ये साढ़े को आंसर आ जाएगा D2 बराबर 18 डेज़। सो 18 डेज़ के विच वो काम करेंगे। सो हुण नैक्सट आप करांगे टाइप 6 का क्वेश्चन। टाइप 6 के क्वेश्चन में कुछ इस तरह आ कि A प्लस B प्लस C जो A B एंड C है टुगैदर किसी काम नूं 12 डेज़ दे विच करते हैं एंड A जो कला आ वो किसी काम नूं 36 डे दे विच करदा आ। B कला जो है वो किसी काम नूं 54 डेज़ दे विच करदा आ। हुण C कला उस काम नूं किन्ने डेज़ दे विच करेगा ये साडे कोल क्वेश्चन है। सो सिंपली इसनूं भी आपां इवें लिखांगे तीनों स्टेटमेंट्स नूं कि A प्लस B प्लस C जो है 12 डेज़ के विच काम करता है। A 36 B सिमिलरली 54। तो पहला आप इन्हां दा एलसीएम निकालांगे। एलसीएम जो है डैट विल बी 108। सो ये साडा हुंदा टोटल वर्क एज वी नो 108। हुण इन्हां दी एफिशिएंसी कढ लांगे। एफिशिएंसी लिए 108 नूं पहला 12 नाल डिवाइड करांगे 9 आ जाएगा 36 ना करांगे 3 आ जाएगा फिर 54 ना करांगे एंड 2 आ जाएगा। सो इट विल बी द एफिशिएंसीज ऑफ A प्लस B प्लस C E एंड B। तो हम आपां नूं पता लग गया आ कि अगर क्वेश्चन में ध्यान नाल वेखीए तो A प्लस B प्लस C की जिहड़ी एफिशिएंसी आ डैट इज़ 9। E की एफिशिएंसी साडे कोल 3 ने B की 2 ने C की सानू नहीं पता। तो C की एफिशिएंसी इत्थों आ जाएगी
9 माइनस 5 C इज इक्वल टू 4। सो साढ़े को C की एफिशिएंसी हैगी 4। सो C की एफिशिएंसी अगर 4 है, टोटल वर्क साढ़े को 108 है, तो इकल्ला वो किसी काम नूं किन्ने डेज दे विच करेगा 108 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करन ते साढ़े को आंसर आ जाएगा डैट इज़ 27 डेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन ਨੂੰ क्वेश्चन की स्टेटमेंट विच कन्फ्यूज कर देंगे ने, बट जो पैटर्न है वो सेम ही चलेगा आल क्वेश्चनस का। नैक्सट आप करांगे टाइप 7 का क्वेश्चन। टाइप 7 के क्वेश्चन टोटली डिफरेंट आ, तुसीं देख सकते हो उहदे विच है कि A+B नूं कोई वर्क दिता सी काम लई, ए वर्किंग अलोन वुड टेक द 8 hours मोर दैन टू कंप्लीट द वर्क दैन दे वर्किंग टुगैदर। इफ B वर्कड अलोन ही वुड टेक 1/2 hours मोर दैन वैन वर्क टुगैदर। मतलब जो काम सीगा अगर उस काम नूं ए करदा आ तो जिन्ना काम उन्हां दोनां ने इकट्ठिਆਂ ने करना हुंदा सी उस तो 8 hours ज़्यादा लगदे पए ने ए नूं, ते बी नूं जे अगर बी इकल्ला करेगा उस काम नूं तो उन्हां नूं 4 से 1/2 hours जो है एक्सट्रा लगदे पए ने उस काम नूं करन दे लई। सो उन्होंने पूछा आ टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगैदर इज़, जो टुगैदर वो अगर इकट्ठे लगन तो कितना काम करनगे, किन्ने दिनां दे विच काम कर सकते हैं। तो ये लिए साडे कोल एक फार्मूला हुंदा है A+B, जो अगर इदां दा कोई क्वेश्चन आ जाए भी इन्नी टाइम ज़्यादा काम करते हैं टोटल ला लो, ये एक फार्मूला है A+B का टोटल टाइम पता करन दा A इंटू टाइम ओवर इंटू B इंटू टाइम ओवर। जिन्ना भी टाइम मोर जिन्ना भी टाइम वध लगता पाया उन्होंने मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू बी दी, दैन वह रूट कट लवेंगे। सो ए नूं लगता पाया टाइम मोर, मतलब ए नूं लगता पाया 8 hours, 8 लिख देंगे। बी नूं आ 9/2, आ मिक्सड फॉर्म है 4 1/2, इनू तुसीं सॉल्व कर सकते जो 4 1/2 डैट इज़ 4 इंटू 2 + 1/2। सो यह देगा 8 + 1 9/2। ठीक है, इनू इस तरह सॉल्व करके 9/2 लिख लेना है। सो A+B का आ जाएगा 36 रूट, 36 रूट होंदा है 6। सो ये सीगा टाइप 7 का क्वेश्चन। सो इस बुक के विचों आपां कीते ने टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन। सो अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगी है तो तुसीं सबसक्राइब कर सकते जी। थैंक यू जी।